کے اس پرہجوم خیبر بازار میں تاجر برادری بالخصوص چھوٹے تاجر زیادہ متاثر ہوئے۔ جان سے گزرنے والوں کے لواحقین بھی جیتے جی جان سے گزر گئے۔ قصہ خانی بازار ہو یا کباڑی بازار یا پھر متنی بازار یا کوچی بازار، دہشت گردوں نے کسی جگہ کو نہیں بخشا، ہر جگہ کی رونق ماند کر دی اور محمد خان جیسے کئی اکلوتے چشم و چراغ گل کر دیے۔ روٹی روزی کی تلاش میں نکلنے والوں کا آخر کیا قصور تھا؟ خان محمد بچپن میں ایک بار ہم سے کھو گیا تھا، 11 ماہ بعد ملا۔ مجھے یاد ہے عید کی رات تھی جب وہ میلے کچیلے کپڑوں میں اچانک گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ 11 ماہ میں نے رو رو کر گزارے تھے۔ اس دن اسے پا کر میں بہت خوش ہوا۔ پھر میں اسے قریبی بازار لے گیا اور نیا جوڑا دلایا۔ وہ عید ہم نے بہت خوشی سے گزاری۔ پھر خان محمد بڑا ہوا۔ ہمیں محلے والوں نے بتایا کہ ہمارا بھائی دھماکے میں جاں بحق ہو گیا۔ میرے والد اس دن ایسے پھوٹ پھوٹ کے روئے جیسے وہ آج رو رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو اپنے بھائی کی لاش کو گھر تک لانے کے پیسے بھی نہیں تھے، ادھار لے کے ہم نے کام چلایا۔ ہمارے والد نے ہسپتال میں بنیان سے بھائی کی لاش کو پہچانا، باقی جسم تو جھلسا ہوا تھا۔ ہمارے والد بھی بیمار ہیں، کما نہیں سکتے۔ ہم 7 بہنیں ہیں، بھابھی کا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس کی بھی 3 بیٹیاں ہیں۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کچھ آس لگی رہتی، لیکن اب ہم سب کو کون کھلائے گا، کون ہماری دیکھ بھال کرے گا؟ کمانے والا ایک تھا، اس کی موت نے ہم سب کو جیتے جی مار دیا۔ اللہ مالک ہے۔ ان نندوں اور 3 بیٹیوں کو لے کے میں کہاں جاؤں؟ یہ بوڑھے ساس سسر، ان کا بھی تو اب میں ہی سہارا ہوں، مگر میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ خدا کے بعد شوہر کا سہارا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ ابھی جی میں ادھر آیا، ادھر دیکھا، یہ لوگ آیا، کتنا لوگ روتے ہیں اس کو بارے میں، خان محمد بارے میں۔ یار خان محمد کیسے بندہ تھا، کیا تھا، لیکن لوگوں کا ابھی بھی پتہ چلا۔ واحد ماشاءاللہ اس کو زوانی میں اتنا 6 بہن، 3 بیٹی، 1 بیوی، 1 ماں، 1 باپ۔ اس گرانی میں، اس پاکستان میں 3 کماتے 1 گھر نہیں سنبھال سکتے، 3 کماتے 1 گھر نہیں سنبھال سکتے، ابھی بھی سنبھالا۔ ڈنگر بھی ایسے نہیں ہوتا ہے جڑا پاکستان دے عوام تھے اور ملک نہیں دیکھے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتے ہیں، سعودی میں ہوتے ہیں، کویت میں ہوتے ہیں، دبئی میں، ایران میں، کیڑا ملک بھی ایسے دھماکے ہوتے ہیں۔ دہشت گرد عوام اور ملکوں میں دہشت گرد بنایا پاکستان اپنا پوزیشن نہیں رکھا ہوا۔ یک گار دروازہ نہیں ہوا، وہ گار ہوتا ہے گا، کتا بھی اندر آ جائے گا، بلا بھی اندر آ جائے گا، مرغا بھی اندر آ جائے گا، کوئی بات نہیں، دروازہ نہیں ہے گا نا۔ خدا واسطہ دروازہ رکھ لو اپنا گار دی، اپنا گار دروازہ رکھ لو، پابندی رکھ لو، سوج لاؤ، اس دھماکوں دے خدا واسطہ کچھ کر لو۔ یہ جو فتنہ اور فساد کی قوتیں ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد نہیں ہے۔ 50,000 ہوں گے، 70,000 ہوں گے، تو یہ 50,000 60,000 جو ہے وہ کیسے 17 کروڑ 170 ملین کے اوپر قابو آ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے یہ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتفاق ہوگا، جو کہ اس کو باہر پھینک دیں گے۔ گلی کوچوں میں، بازاروں میں، عمومی جگہوں پر ذرا ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس میں ایسے لوگ مارے جا رہے ہیں، بے گناہ لوگ، کہ جو بیچارے مزدوری کے لیے، کام کاج کے لیے نکلتے ہیں۔ بچے گھر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شام کو میرا باپ آئے گا تو کچھ کما کے لائے گا، سبزی، فروٹ، کوئی چیز لائے گا تو ہم کھائیں گے۔ وہ سنتا ہے کہ باپ مر گیا، باپ نہیں آیا، کھانا تو چھوڑے کہ اس کے گھر میں کہ ابدالآباد کے لیے وہ بیچارہ بے سرپرست ہو جاتا ہے۔ دہشت گردی کی بہیمانہ کارروائی میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیا کوئی مذہب یا سیاسی فلسفہ معصوم اور بے خطا لوگوں کو بلا جواز ذبح کرنے کا جواز پیش کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس قسم کی بربریت کرنے والے دہشت گرد تہذیب سے، تمدن سے عاری ہوتے ہیں۔ ان میں سوچنے کی صلاحیت سلب ہوتی ہے۔ آخر کار محمد خان کو بھی دیگر شہداء سمیت سپرد خاک کیا گیا۔ انسانی جانوں سے کھیلنے کا یہ عمل انتہائی گھناؤنا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستان کی دہشت گردی نے نہ صرف میرے بیٹے کو چینا، بلکہ بہت سی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی ہیں، بہت سی بہنوں کے بھائیوں کو مارا ہے،
बहुत से बच्चों को यतीम कर दिया है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इसका क्या हल निकलेगा? अब तक तो ये सब शहरों में हो रहा है, मगर बहुत जल्द गांव भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। पाकिस्तान में कोई जगह महफूज नहीं है। इन दहशतगर्दों के खिलाफ हमें मुनज़्ज़म होना है और बैनुल-अक़वामी मफादात की बुनियाद पे हमारी सरजमीन को दहशतगर्दों के हाथों में जो छोड़ दिया गया है, हमें यकसुई के साथ सारा मुल्क यकजुबान होके हमें अपनी मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखकर पॉलिसी अपनानी है और उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिहाद जारी रखनी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये धमाके कैसे होते हैं। जब मैं कारखानों मार्केट से आता हूँ पेशावर तक 3-4 जगह पुलिस खड़ा है, ये उतारता है यार भाई शनाख्ती कार्ड दिखाओ, तलाशी लेते हैं। जब किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं होते, अफगानी लोग होते हैं, इसका 14 पारानेट में चालान कर रहे, इसको जेल में 17 दिन 20 दिन जेल में रहते हैं, फिर बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ये लोग गैर कानूनी क्यों आया ये मुल्क में? मैं ये सोच रहा हूँ, ये मुझे अफसोस है कि एक बगैर शनाख्ती कार्ड के लिए एक बंदा नहीं जा सकते, अड्डे तक नहीं पहुँच सकते। इतना बारूद कैसे लाएगा, किस चीज़ में लाते हैं? बाबा भी रोते हैं कि मेरा ये बच्चा है काम वाला, वो मेरे से चली गए, क्या हुआ, क्या ही नाम मिल गया उन्हें। दहशतगर्द से मैं हैरान हूँ। 200 300 50 100 एक धमाके से मर जाएगा, उसकी रकम नहीं आएगा। खुदा वास्ता पाकिस्तान देख लो, इस हालात में देख लो। कहते हैं जब धमाका हुआ तो कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी, फिर गर्द और धुएं का सा बादल चारों तरफ फैल गया। लोग मदद के लिए एक दूसरे को पुकारने लगे और हर तरफ इंसानी आज़ा फैले हुए थे। धमाके का निशाना बनने वाला बाजार पेशावर के सदर बाजार और कबायली इलाके खैबर एजेंसी के पॉलिटिकल एजेंट के दफातर से ज़्यादा दूर नहीं है और वहाँ से सिर्फ 40-50 गज के फासले पर पाक फौज की एक कॉलोनी भी वाक़ है। पहला धमाका पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक निस्फ शब के बाद हुआ। ये एक कम शिद्दत का धमाका था, लेकिन उसके चंद मिनट बाद जब पुलिस एहलकार, रेस्क्यू का अमला और सहाफ़ी वहाँ पहुँच चुके थे तो एक ज़्यादा शिद्दत का धमाका हुआ, जिससे 47 से ज़ायद अफराद हलाक और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। पुलिस एहलकार के मुताबिक पहला धमाका बज़ाहिर एक गैस सिलेंडर से किया गया था, जबकि दूसरा धमाका एक खुदकुश था, जिसमें खुदकुश बमबार एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचा था। पेशावर की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कहा जा सकता है कि सूबे के तमाम शोरशज़दा इलाकों के लिए महफूज ठिकाने की हैसियत रखने वाला ये शहर खुद बदअमनी की लपेट में आ चुका है। दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात के बाद ऐसे आसार नुमाया हो रहे हैं कि सवात समेत तमाम शोरशज़दा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जूं जूं तूल पकड़ती जा रही हैं। पेशावर में बदअमनी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। दर्रा आदमखेल की सरहद से खैबर एजेंसी तक तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले तक फैले हुए इस शहर में अब दिन हो या रात आज़ादाना नक़्लो हरकत मुश्किल होती जा रही है। तज्ज़िया निगार इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए कोई एक मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी वज़ा की जाए जिस पर इत्तेहाद कायम हुआ जाए। आधी रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा हमसाया खड़ा था। मुझसे कहने लगा, जिस दुकान में तुम्हारा बेटा काम करता है उसके मालिक ने फ़ोन करके बताया कि धमाका हुआ है और तुम्हारा बेटा ज़ख्मी है, अस्पताल जाना है। मेरे तो अवसान हता हो गए। मेरे पास तो अस्पताल जाने के लिए रिक्शे का किराया भी न था। फिर किसी से उधार लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में क़यामत का मंजर था। हर तरफ लोगों की भगदड़ मची हुई थी। आहो बका और सिसकियों का मंजर आंखों से आज भी नहीं जाता। लीडी रीडिंग अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर लाशों की बड़ी कतार लगी हुई थी। सब उसमें अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। मैं भी अपने बेटे को ढूंढने लगा। मैंने एक एक के चेहरे से चादर हटाई, देखा मगर मेरा बेटा न मिला। फिर किसी ने कहा ओपीडी के बाहर भी कुछ लाशें पड़ी हैं। मैं भागा भागा वहाँ गया। एक से चादर उठाई, फिर दूसरी से। जब तीसरी चादर उठाई वो मेरा बेटा था। मेरे पैरों से तो जैसे ज़मीन निकल गई और मैं गिर पड़ा।
जो गुजरी अल्लाह जानता है। फिर अस्पताल वालों ने कुछ कार्रवाई पूरी करने के बाद लाश हमारे हवाले की। अल्लाह भला करे दुकान के मालिक का, उसने गाड़ी का बंदोबस्त करके लाश को घर तक पहुंचाया। जिसने धमाका किया है इसको मैं बता रहा हूँ, आप जो किसको ट्राई दिया, किसको ट्रेनिंग दिया धमाके के लिए, मस्जिद में धमाके करे, आपके मैं कह रहा हूँ इस 6 बहन का, 3 बेटे का, 1 बीवी का क्या कर रहा है? लोग में भीख मांग रहे। आप मुसलमान है, काफिर है, क्या है आप मुझे ये बताओ, कोई मैसेज भेजो इसमें। क्या ये नहीं सोचे आपका घर में बच्चा है, आपका दिल में, सीना में दिल है, आपका माँ बाप है, आप किसी के बच्चा है? बच्चों की रोटी की तलाश कर लो, बाजार पे नहीं जाऊं, बच्चों वास्ते सा कपड़ा नहीं लिया करूं, जाओ मैं बस धमाका होगी। धमाके की कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदा भी नहीं पकड़ा हुआ, 1 सिगरेट चर्च पकड़ सकते, बारूद 70-80 मन, 100 मन, 150 मन, 50 किलो, 30 किलो, 20 किलो ये नहीं पकड़ सकते, क्यों हुआ? अब ज़रूरत इस बात की है कि वो अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करे, दोगली पॉलिसी से उनको छुटकारा हासिल करना चाहिए, यकसुई के साथ अपना एतमाद बहाल करके दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, तब मुमकिन है कि ये दहशतगर्दी ख़त्म हो और हम इंसानियत को महफूज कर सकें। अगर ऐसा नहीं है, जो ममालिक दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं उनका आपस में एतमाद न हो, तो भला ये कैसे मुमकिन है कि ये दहशतगर्दी ख़त्म हो? इस दहशतगर्दी की वजह से महंगाई, गुर्बत, इफलास, बेरोज़गारी ये बढ़ गए हैं। और यही वजह है कि वो लोग, बाज़ लोग ऐसे भी हमें जो लोग बताते हैं कि गुर्बत की वजह से बाज़ दहशतगर्दों के हाथ छड़ जाते हैं बेचारे, वो अपने गुर्बत और महंगाई की वजह से उनके हाथ लग जाते हैं, वो कुछ पैसे देकर उनको इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, सब पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है, हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क को बचाएं, इस कौम को बचाएं। और इस मुल्क के हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी पायलटों की जानिब से कामाकाजी यानी खुदकुश हमलों से दुनिया में जो हथियार मुतारिफ कराया गया, वो अब खौफनाक हद तक फैल गया है। कहते हैं कि 9/11 के न्यूयॉर्क पर हमलों ने इसे नई शक्ल दे दी और ये खूनी हमलों की शक्ल अब गली गली, कूचे कूचे में पहुंच चुकी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मना करने के बावजूद भी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे तबाहशुदा इमारतों के नीचे ख़तरनाक सूरत हाल में रिपोर्टिंग करते दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक धमाके में एक मासूम सहाफ़ी आबिद नवीद और असफंदियार भी शहीद हो गए थे। नहीं करो ये धमाके, नहीं करो, हमारा पाकिस्तान में रूटीन चल रहा है। घर किराए का है, मालिक मकान हमें निकालने पर तुला हुआ है। मैं इन सब को लेकर कहाँ जाऊँ? सर छुपाने के लिए मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। मेरा दिल चाहता है बस अब मैं मर जाऊँ।